Welcome students in your physics class. In my last lecture I have discussed about integration and differential method. Now today's topic is equations of motion by calculus method. Students, our first relation is velocity time relation. As you know, instantaneous acceleration is a is equal to dv upon dt, change in velocity with respect to time. This dv is a small change in velocity in a small time interval dt. And let's take this a is a constant. Actually the motion is a uniform accelerated motion. Then this in the next step, this dv is equal to a dt, integrating and taking limits on both sides. Okay, now integrating both sides, integration of dv, integration of a dt, this term clear, and taking the limits also. The limit goes from u to v. Here u is the initial velocity and v is the final velocity. Okay, and similarly, because here this term is integrating with respect to time, so the limit will be also of the time. तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो उसका लिमिट क्या होता है, लिमिट जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं. जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर ठीक है, ये dv है, विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और लेट्स सपोज हियर इट इज़ 1. जब कोई भी फंक्शन ना दिया हो आप वहाँ 1 ले लेते हैं, तो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस 1 यू गेट v एक्चुअली, एंड बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग दिस 1 विद रेस्पेक्ट टू v, सो लिमिट विल बी ऑफ वेलोसिटी. तो लिमिट वेलोसिटी का ही होगा, ठीक है. तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. इसी तरह से ये टर्म आपने टाइम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ लिमिट टाइम का होगा, किसका होगा, टाइम का होगा. लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज t. क्योंकि a कांस्टेंट है इसलिए हम a को बाहर ले लेंगे ऑपरेटर से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कांस्टेंट टर्म्स को आउटसाइड लेते हैं हम ऑपरेटर से. देन टेकिंग दिस a आउटसाइड, देन integrating okay with respect to time, because here is no function, so consider it is 1. clear. और 1 का इंटीग्रेशन सेम फंक्शन होगा. जब आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे, 1 की जगह आप v टू द पावर 0 ले लेंगे. जब v टू द पावर 0 को आप इंटीग्रेट करेंगे, देन यू गेट v टू द पावर 1, क्योंकि पावर इंक्रीजेस बाय 1, ठीक है. सो v की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. इसी तरह से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको सेम वेरिएबल मिलता है, t आपको मिलेगा. लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t, और इसका लिमिट u से v जा रहा है. नाउ पुटिंग द लिमिट, फर्स्ट विल पुट अपर लिमिट, वी रिप्लेस दिस v by v. सिमिलरली with a negative sign you put the lower limit, then we will replace this v by u. Okay, you get v minus u after putting these limits. Similarly, when we put the limit of time actually, so firstly we'll put the upper limit, so t replaced by d. Now second time with the negative sign, this t replaced by 0, lower limit, clear. So you get t minus u. Now students, next step, v minus u is equal to at. Now finally you get v is equal to u plus a. This is your first equation of motion. Now come to the next one, position time relation. To derive this equation, to derive this relation, we take the instantaneous velocity. तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको. जब आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन ड्राइव करते हैं तो यू टेक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. नाउ सिमिलरली हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोजीशन टाइम रिलेशन. वी स्टार्ट्स फ्रॉम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. स्टार्टिंग का आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ठीक है. तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v is equal to dx over dt. ओके, नाउ dx is equal to v dt. dt को इधर लेके जाएंगे तो v dt हो जाएगा, ठीक है. नाउ इंटीग्रेटिंग एंड टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड, बिकॉज you are integrating this as a variable x actually, so you will take the this x is a position distance, so we will take the limit also of position. So lower limit is x0 and upper limit is x. Okay, similarly you integrate with respect to time. Okay, so the limit will be also of time. तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, 0 है, और अपर लिमिट t है, क्लियर. तो 0 टाइम में पोजीशन क्या है, x0 है, तो ये 0 टाइम में पोजीशन x0 है. दिस इज ऑरिजिन. तो t जब 0 है तो x
नॉट उसका पोजीशन होगा किसी भी बॉडी का, और जब टाइम t हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक टाइम हो गया t, क्लियर। तो पोजीशन क्या हो गया उसका, x हो गया, क्या हो गया, x। तो फाइनली दिस x माइनस x नॉट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये फाइनल पोजीशन इज दिस वन एंड इनिशियल इज दिस वन। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द shortest distance in between these two initial and final position, it will be x minus x naught, ठीक है, x minus x naught, this is displacement, clear students। तो इस तरह से हमने जब इसको इंटीग्रेट किया है और विद लिमिट, एक्चुअली लिमिट के साथ हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में है तो उसका x का लिमिट हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में है टाइम का लिमिट हो गया। तो जब आप इसको dx के रेस्पेक्ट, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, लेट्स टेक हियर इट इज 1। देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है दिया हुआ है तो इसलिए आप यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, क्योंकि आप विद रेस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको सेम वेरिएबल मिलता है अगर 1 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा यहाँ 1 था t के रेस्पेक्ट में तो आपको t मिला, यहाँ पर 1 था v के रेस्पेक्ट में आपको v मिला। इसी तरह से क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम इसको कर रहे हैं और क्योंकि कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर सेम वेरिएबल मिल जाता है, x मिल जाता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी होता है, मैंने आपको बताया शुरू में, जब आप इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, अगर कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो 1 ले लेंगे, तो 1 को आप x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, dx हो गया, ठीक है। x की पावर 0 है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 + 1 हो जाता है अपॉन 1, तो इस तरह से आपको x की पावर 1 मिल जाता है, जिसको आप x लिखते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप इसको निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसका 1 का x आ जाएगा, लिमिट गोज फ्रॉम x नॉट टू x, इस तरह से v। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन आपने v = ut फाइंड किया है, उसकी वैल्यू को यहाँ पर हम v = u + at, तो v की वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, v = u + at, तो v के प्लेस पे हमने u + at पुट किया है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म हो गए, u है और at है, दोनों को हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। पहले u को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद at को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, u को, यहाँ पर हमने u को कॉमन ले लिया है, सॉरी आउटसाइड लिया है, ठीक है, क्योंकि u कांस्टेंट है। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर दो वेरिएबल, यहाँ पर 2 चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, u कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, शुरू में मैंने बताया था, और a भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर u को बाहर लेंगे। तो टेकिंग दिस u आउटसाइड बिकॉज u इज कांस्टेंट आल्सो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा ना उसका, आप आगे कितना ही उसको कैलकुलेशन करते हैं लेकिन उसका इनिशियल सेम रहेगा, इनिशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, और एक्सेलरेशन भी क्योंकि कांस्टेंट है। तो u और a दोनों ही कांस्टेंट हैं। जब आप ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो u और a जहाँ भी होंगे उनको हम बाहर ले लेंगे ऑपरेटर से, ठीक है। तो टेकिंग दिस u आउटसाइड, नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो 1 ले लेंगे, विल टेक 1 हियर, सिमिलरली a इज कांस्टेंट, टेकिंग आउट, ओके। नाउ t dt, क्लियर। u 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t, प्लस a t का इंटीग्रेशन t² हो जाएगा, और लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t, क्लियर। s = नाउ पुटिंग द लिमिट, तो t - 0, जब आप लिमिट पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, ठीक है, तो t - 0 आएगा, फाइनली ut हो जाएगा, प्लस इस तरह से a हाफ को इधर ले आएंगे, बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं बिफोर पुटिंग द लिमिट। व्हेन यू पुट द लिमिट, तो t को t से रिप्लेस करेंगे तो t² - 0 आएगा, तो इस तरह से आपको हाफ at²। तो स्टूडेंट, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए लास्ट इक्वेशन देखते हैं, which is known as velocity position relation. Now we start from instantaneous acceleration, which is a = dv/dt. Here students, we will multiply and divide by the same value. dx से हमने इसको डिवाइड किया है और dx से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। बस हमने किया क्या है, dv के अपॉन में हमने dx ले लिया, ठीक है, dv के अपॉन में dx ले लिया, ठीक है, और dx से ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट करके आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी, dv/dt आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है।
तो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम थर्ड इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इस ऑपरेशन करने की, इस ऑपरेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम करते क्या है यहाँ पर, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम वैल्यू। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, this dv upon dx remain as it is actually. Now this dx upon dt is the v velocity, okay, distance upon time, तो velocity हो गया आपका, क्लियर। नाउ dx को इधर लेके जाएंगे तो a dx हो गया प्लस v dv, इंटीग्रेटिंग एंड टेकिंग लिमिट्स। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, हियर you integrate this function, this term with respect to x and this with respect to velocity, clear here, because a is constant, taking it out. Now integration, now integrating this v, it becomes v square upon 2, limit goes from u to v, because here it is 1, so it becomes x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इधर समझा रहा हूँ आपको, ये एक्स नॉट एक्स, यहाँ पर ये 1 है, डी एक्स है, ठीक है। जब आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा x, और लिमिट जा रही है इसकी एक्स नॉट टू एक्स, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एक्स। तो इसमें एक स्टेप जो है वो कम है, तो वो मैंने यहाँ समझा दिया आपको। तो डायरेक्टली इसको मैंने लिख दिया है, लिमिट पुट करके x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा हाफ। 2 को हम ये हाफ को बाहर ले लेंगे ना, 1/2, क्लियर, क्योंकि कांस्टेंट है। तो जब आप लिमिट पुट करने आ रहे हो तो इससे पहले आप कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेते हो बिफोर पुटिंग द लिमिट। नाउ विल पुट द लिमिट एक्चुअली व्हिच इज u to v। नाउ इट बिकम्स व्हाट, x माइनस एक्स नॉट क्या होता है, अच्छा x माइनस एक्स नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम as ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, as हो जाएगा, ये as हो जाएगा। इसके बाद हाफ लिमिट पुट करेंगे, v को v से रिप्लेस करेंगे, v स्क्वायर होगा माइनस लोअर लिमिट, अब v को u से रिप्लेस करेंगे, माइनस v स्क्वायर होगा, ठीक है। नाउ 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as हो जाएगा। नाउ रिमेनिंग टर्म्स v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो फाइनली यू गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। दिस इज योर फाइनल रिलेशन, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सपोज करिए 2 बॉडी हैं, एक का स्पीड है a और b, ये 2 बॉडी हैं। एक का स्पीड ले लीजिएगा va है, और दूसरा जो कि उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में a मूव करती है, उसका वेलोसिटी है v। तो अब इन दोनों का, अच्छा ये va जो वेलोसिटी है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, a बॉडी, इस तरह से ये vb वेलोसिटी है, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है b बॉडी की। दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब आपको यहाँ पर सपोज करिए किसी एक को ऑब्जर्वर मान लेते हैं कि a ऑब्जर्वर है, और a ऑब्जर्व करता है b की स्पीड को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पर हम निकालने जाएंगे कि a की जो स्पीड है b के रेस्पेक्ट में क्या होती है, ठीक है। तो जिस तरह आपने यहाँ पर देखा, ये VAG क्या है एक्चुअली, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू G। वेलोसिटी ऑफ A, इस बॉडी A का स्पीड है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये स्पीड हो गया B का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं A की रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में, देन किस तरह से हम लिखेंगे, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B के रेस्पेक्ट में, यानी B को हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो B को हमने रेफरेंस मान लिया, A ऑब्जर्वर है और B रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो B के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी A की, वो VA माइनस VB हो। ये फॉर्मूला होता है, इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर सपोज करिए हम B की A के रेफरेंस में निकालें, यानी कि अब A को हम रेफरेंस मानते हैं, तो उस केस में क्या होगा, B की वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं आप A के रेस्पेक्ट में, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VB माइनस VA। तो स्टूडेंट ये 2 फॉर्मूले आप याद रखिएगा, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये इसका इनवर्स हो गया। अच्छा, अगर आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के
ठीक है, अपोजिट होंगे यानी कि विद नेगेटिव साइन आपको वैल्यू मिलेगा। तो VAB जो है विल बी इक्वल्स टू माइनस VBA। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम किसी भी एक बॉडी की दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड वन। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिया VA एंड VB आर द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज A एंड B, then relative velocity of A with respect to B is given by what? VAB is equal to VA minus B। एक फॉर्मूला ये हो गया। Similarly, the relative velocity of B with respect to A, it will be what? VBA is equal to VB minus BA। Clear? एक दो एग्जाम्पल समझ लीजिए। सपोज करिए एक पर्सन है जो कि ट्रॉली पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ट्रॉली का डायरेक्शन इधर है मूव करने का, और इसका स्पीड मान लीजिए, इस पर्सन का स्पीड मान लीजिएगा, ये पर्सन A है एक्चुअली, और इसका स्पीड है VA। ठीक है, दूसरा पर्सन जो है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो ये रेस्ट स्टेट में है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये पर्सन इसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ये रेफरेंस हो गया एक तरह से, जो B है, पर्सन B है, ठीक है, ये एक रेफरेंस है फॉर दिस वन। तो अगर बात करते हैं हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं कि इफ यू से दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस A okay with respect to B, then how you will write this one? So speed of A with respect to B will be what actually? VA minus VB। अगर आपको सपोज करिए ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली मूव कर रही है, जिस ट्रॉली पर एक पर्सन खड़ा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, एंड दिस ट्रॉली मूविंग विद दिस स्पीड एक्चुअली, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन विच इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज this person is in rest state। So what will be the relative velocity of A with respect to B? It will be what? It will be 10 meter per second upon 0, so it will be 10 meter per second। ठीक है, सेकंड केस हमने लिया, सपोज करिए कि ये पर्सन ट्रॉली पे खड़ा हुआ है और ट्रॉली स्पीड VA is equal to 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये जो ग्राउंड पे पर्सन खड़ा हुआ है ये भी किसी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन में किसी स्पीड से मूव कर रहा है, उस स्पीड को आप ले लेते हैं VB is equal to 5 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स आपको A का स्पीड बताना है B के रेस्पेक्ट, जिसमें कि दोनों बॉडी मूव कर रही है, A भी मूव कर रही है और B भी मूव कर रही है, दोनों के केस में अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? VAB अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? VA माइनस VB, फॉर्मूला वही होगा, तो VA is 10 and minus 5, ठीक है, तो इट बिकम्स 5 मीटर पर सेकंड। नाउ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B will be what? VAB is equal to this one। अगर सपोज करिए आप B की रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं A के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अब रेफरेंस क्या हो गया? रेफरेंस A हो गया, और B का आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो BA हो जाएगा सिंपली, तो VB माइनस VA। क्लियर? VB इज व्हाट? 5 माइनस VA इज 10, तो माइनस 5 ये होगा माइनस 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? माइनस 5 मीटर पर